নমস্কাৰ বিগ নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ মুখ হৈতে আছে জ্যোতিদীপ বৈশ্য এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত এটা দুখৰ আৰু চিন্তনীয় খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এখন হাস্পতালত 160 জন এই মুহূৰ্তত কোভিড ৰোগী আছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ বাবে অক্সিজেন আছে হাহাকাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰা জ্যোতিদীপে ডাঙৰ খবৰটো আমি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আমি এটালৈ জনাইছো ডাঙৰ খবৰ দিল্লীৰ হাস্পতালত এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি ফুল প্লেট ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকক জনাম যে দিল্লীৰ হাস্পতালত এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ স্পাইনেল ইনজুৰি চেণ্টাৰত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰহে অক্সিজেন বাকি আছে 160 গৰাকী কোভিড ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে হাস্পতালখনত টুইট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় ভিক্ষা খুজিছে হাস্পতালখন ধাৰাবাহিকভাৱে দিল্লীৰ বিভিন্ন হাস্পতালত অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে আৰু কালি নিশাৰে পৰা স্পাইনেল ইনজুৰি চেণ্টাৰত অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছিল 160 গৰাকী কোভিড ৰোগী হাস্পতালখনত আছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ অক্সিজেন বাকি আছে আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ইমাৰ্জেন্সি SOS মেছেজ পঠিয়াইছে আমি টুইট দেখুৱাম হাস্পতালখনৰ টুইট আমাৰ লগত আছে হে টুইটত তেওঁলোকে কি কথা লিখিছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি টুইট দেখুৱাম লগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' দেখুৱাম আমি জ্যোতিদীপৰ কাষলৈ গৈছো হয় এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এটা টুইট দেখুৱাই আছো যিটো টুইট আপোনালোকে যদি চাই এয়া হৈছে ICIC যিখন হাস্পতাল আমি ইয়ালৈ আহিম ভিডিঅ' ৱালৰ পৰা ইয়ালৈ আহিম আৰু ইয়াত যদি আমি দেখুৱাও কেমেৰাটো যদি সুইচ কৰে আমি ইয়াত যদি দেখুৱাও ইয়াত তেওঁলোকে লিখিছে 2 ঘণ্টাৰ আগতে লিখিছে ইণ্ডিয়ান Spinal Injury Center Basant Kunj with 160 COVID-19 patients are left with another 1 hour of oxygen cylinder stock. We have been waiting for the supply last night but no luck so far. 2 ঘণ্টা গন্তে 1 ঘণ্টা আছিলে আৰু এতিয়া 20 পৰা 30 মিনিট আছে এয়া চাওক Urgent SOS call Indian Spinal Injury Center Basant Kunj left with only 20 to 30 minutes of oxygen stock. If pressure reduce hardly it will last for another 45 minutes. No hope or assurance from anywhere so far. Please help 160 patient admitted here. Hospital administration. Edore egoraki hangbadike ei kotha tweet korise. Tar pasote DCP South West Delhi torofar pra ei muhurtot teolukor torofar pra protikriya hi koi teoluke hohay korim boli koise kintu kalpona korok Dillit etia ekhon hospitalot ami hospitalkhon dekhwai asu aru ei hospitalkhonot matro keitaman muhurtor অক্সিজেন বাকি আছে আমি এতালক দেখুৱাইছো তেওঁলোকে লিখিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত 160 গৰাকী কোভিড-19 পেশেন্টস আছে এটো এটা বৃহৎ সংখ্যা অক্সিজেন নাপালে তেওঁলোকৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকক জানিব পৰা গৈছে মাত্ৰ 20 পৰা 30 মিনিট অক্সিজেন হে বাকি আছে আমি দিল্লীত আমাৰ সাংবাদিক সবজিত পাঠক থাকিব আমি তেওঁৰ হৈতেও পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম আৰু তেওঁৰ পৰা অধিক তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই মুহূৰ্তত দিল্লীলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো জ্যোতিদীপ দিল্লীত আমাৰ সাংবাদিক सोवित पथक আছে আমি তেৰখতে পুনপটে সম্প্ৰচাৰ যাম হয় सोवित वी आर कनेक्टिंग लाइव विद सोवित जी मैं आपसे जानने के लिए कोशिश करूंगा दिल्ली का जो ICIC जो अस्पताल है उन लोगों ने बताया है कि 160 पेशेंट्स दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और वहां पे ऑक्सीजन की कमी है अभी स्थिति क्या है सोवित जी जी बिल्कुल सही जानकारी है आपके पास में क्योंकि मैं यहाँ पर मौके पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए ही बचा है यहाँ पर मौके पर क्योंकि यहाँ पर जो कोविड पेशेंट है वो 160 के आसपास उनकी संख्या है और ऐसे में ये बहुत बड़ी चीज है कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में ऑक्सीजन बचा हुआ है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी प्रशासन की तरफ के लिए एक मैसेज भेजा गया कि आप जल्द से जल्द इस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति कराएं। हाँ सोभित जी दिल्ली का बाकी अस्पताल का अभी का हालत कैसा है देखिए सबसे बड़ी चीज ये निकल के आ रही है कि दिल्ली में जिस हिसाब से मीटिंगों का दौर चल रहा है और ऑक्सीजन की कमी जो है ये खासकर दिल्ली में देखी जा रही है ये सबसे बड़ी एक गंभीर समस्या के रूप में निकलकर सामने आई है गंगाराम हॉस्पिटल में कल 24 घंटे में 25 मौतें सामने आई थी ऑक्सीजन की वजह से और जिसके बाद में वहां पर ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाया गया था और वही हाल अब यहाँ का भी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है ऐसे में जो ये सवाल निकल के आ रहा है कि प्रशासन या शासन ऑक्सीजन की आपूर्ति से अस्पताल को कितनी देर में पहुंचाएगा सोवित आई वांट टू नो वन थिंग फ्रॉम यू देखिए आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो कॉन्फ्रेंस किया था उसमें केजरीवाल ने बताया था कि ऑक्सीजन का कमी दिल्ली की हर जगह पे है मैक्स अस्पताल में थे गंगाराम में है तो अभी दिल्ली का हालत आपने जो बताया है अधिकतर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है
अभी जो 107, दिस इज अ बिग नंबर, 160 पेशेंट्स। सो अगर कोई सहायता नहीं आया 1-1.5 घंटा के बाद, बहुत जिंदगियों का सवाल है। तो सेंट्रल क्या कर रहा है और अभी दिल्ली सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव अब तक लिया गया है? शोभित जी। बिल्कुल, देखिए कि जिस हिसाब से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है, और उस हिसाब से यहाँ से प्रशासन, जो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हमारी बात हुई। इन्होंने कहा कि हमने सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाई है, एक ट्वीट भी किया है ऑफिशियल तौर पर। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी चीज ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर 1.5 घंटे में ऑक्सीजन की आपूर्ति इस अस्पताल में नहीं की गई तो फिर जो है हालत हाथ से निकलती हुई दिखेगी। वो आ गए हैं डॉक्टर जी, हम आपसे बात। हमारे साथ में इस समय बात करने के लिए प्रीतम जी हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी देर के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है? हमारे पास अभी 1 से 2 घंटे के लिए सिलेंडर ऑक्सीजन बचा हुआ है। हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन भी है, मगर लिक्विड ऑक्सीजन हमारा कल दोपहर तक के लिए हो जाएगा। मगर 100 पेशेंट जो है वो सिलेंडर के ऊपर डिपेंडेंट है, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आके हमें हेल्प करे कि हमें अभी अराउंड 60 टाइप डी और जंबो सिलेंडर्स की जरूरत है, और अगले 2-3 घंटे के अंदर अगर वो हमें नहीं मिलेगा, बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होगा। जैसे आज जो सुबह आपने सुना है कि गंगाराम में क्या हुआ है, हम वो नहीं चाहते हैं कि उससे पहले, मैं इसलिए आपको इस मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ कि उससे पहले कोई आगे मदद करे, और उसके जरिए हम जो भी सिचुएशन जो आगे बुरा होगा उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज हेल्प अस। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ये जो 1.5 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, इसको लेकर प्रशासन या शासन की तरफ से या सरकार की तरफ से के लिए क्या मैसेज भेजा गया है? क्या वहां से रिप्लाई आया है? हम सुबह से सारा प्रशासन, मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, सबको मेल भेजते जा रहे हैं। हमारा गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी को दिल्ली में सभी जगह भेजा गया, कहीं पे भी मिला, दिल्ली के बाहर आउटसाइड स्टेट में भी भेजा गया, वहां पे भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और कहीं पे अगर मिल रहा है तो हमारा गाड़ियों के लिए भी प्रॉब्लम, बॉर्डर क्रॉस करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और उसको गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरे स्टेट क्यों नहीं जाने दे दिया रहा है? क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल गाड़ियां हैं, हॉस्पिटल की गाड़ियां हैं, इस समय इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे छूट दी गई है पूरी दिल्ली के अंदर, फिर क्यों उन्हें रोका जा रहा है? जैसे मीडिया में पहले भी हमने देखा है कि जरा कुछ ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, मगर ये जो है बस बहुत कम है। और जहाँ पे हॉस्पिटल अपना प्राइवेट व्हीकल्स को भेज के, अपना एम्बुलेंस को भेज के जो मंगाया जा रहा है, उसके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर अभी तक नहीं बना है। सारा प्राइवेट हॉस्पिटल का गाड़ियां बॉर्डर में फंसे हुए हैं, या फिर जा नहीं दिया जा रहा है उनको। अगर जाते हैं तो वो आ नहीं पाते हैं, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस ऑफकोर्स इसमें क्या है कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब आगे अभी अगले 3-4 घंटे में क्या होने वाला है, सिर्फ हमारा हॉस्पिटल में ही नहीं है, बाकी हॉस्पिटल में भी क्या होगा, ये बड़ा क्राइसिस सिचुएशन होने वाला है। उससे पहले हमें इससे जल्दी कुछ एक्शन लेके कुछ किया जाए, ताकि बहुत सारे जान बचा सके। लगभग कितने पेशेंट हो गए कोविड के? क्योंकि यहाँ पर एक जो संख्या निकल कर आई थी वो 160 थी, जिस हिसाब से ऑफिशियल ट्वीट किया गया था। ऐसे में 160 जो मरीज हैं कोविड के, उनके लिए जो पर्याप्त ऑक्सीजन है वो कितनी देर के लिए अभी इस वक्त हॉस्पिटल में बची हुई है? अभी हमारे पास करीबन 150 पेशेंट हैं, उसमें 50 पेशेंट जो हैं वो जो आईसीयू और क्रिटिकल एरियाज में हैं, उनके लिए लिक्विड ऑक्सीजन अवेलेबल है। लिक्विड ऑक्सीजन कल दोपहर तक के लिए है। मगर जो 100 पेशेंट हैं वो जो हैं वो डिपेंडेंट हैं जो सिलेंडर के ऊपर। कभी भी अगर उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाए, ये लोग जो है ऑक्सीजन की जरूरत की वजह से सीरियस होके उनके आईसीयू जरूरत पड़ सकती है। मेरा आईसीयू ऑलरेडी भर चुका है, तो मेरा हालत ऐसा नहीं है कि मैं इन पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर सकूं। तो अगर ये इनकी हालत अगर बिगड़ जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से आपने क्या मदद की उम्मीद जताई है? क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां ऑक्सीजन को लेकर खराब हो रही हैं, जिस हिसाब से हालात बिगड़ रहे हैं, उस हिसाब से हम हर संभव प्रयास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अस्पतालों को। फिर क्यों नहीं? क्योंकि सुबह का आप बता रहे हैं, सुबह से आप लोग कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात अभी तक नहीं बन पाई है। क्या वजह है? तो वजह तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा काम है पेशेंट को ट्रीट करना, हॉस्पिटल में रहना। हमारा एक्चुअली ये भी काम नहीं है कि ऑक्सीजन तो कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, ये हमारा काम नहीं है। ये सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि हमारा काम जो होगा पेशेंट और मरीज को देखना, उनको ठीक करना, ठीक, और उससे हमारा जो भी काम होगा उसके रिलेटेड हम करेंगे। मगर ऑक्सीजन के लाने के लिए सारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा दिन, सिर्फ हमारा ही हॉस्पिटल नहीं है, बाकी हॉस्पिटल भी
जी शोभित जी ने दिखाया, शोभित पाठक ने दिखाया है टाइमेट कैपिटल की वहां से। तो अस्पताल का जो वहां का मैनेजमेंट है তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি কৈছে যে কি এক পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে, কি এক পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে। ঋতুস্মিন মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ অক্সিজেন বাকি আছে আৰু তেওঁ ये नहीं दे रहे कि ये हमारा ऑक्सीजन इतना है, ये ले लो और आगे अभी के लिए मैनेज करो। कोई ऐसे डोर डिलीवरी जो हम जो चाहते हैं कि अथॉरिटी आके हमें डोर डिलीवरी करें। হয় আমি ধন্যবাদ জনাইছো শোভিত টাইমেট কেপিটেলৰ পৰা আমাৰ গ'ল শোভিত পাঠক, তেখেত গ'ল, তেখেতে কথা পাতিলে আৰু হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিলে। মই ঋতুস্মিনৰ কাষত আহিব বিচাৰো। ঋতুস্মিন তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও কৈছিলে যে হাৰিয়ানা হওক, যদি সম্ভৱ হয় আমি ষ্টুডিঅ' আহিম, হাৰিয়ানা হওক আন প্ৰান্তৰ পৰা দিল্লীলৈ অক্সিজেন যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। গংগাৰামত 25 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে, মেক্সত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইবাৰ এই যিখন কোভিড হাস্পতাল আছে তাত 160 গৰাকী লোকে অক্সিজেন কিন্তু পোৱা নাই। ঋতুস্মিন হয় ডাঙৰ কথা, 160 জন কোভিড ৰোগী আছে আৰু আধা ঘণ্টাৰ হাতত তেওঁলোকৰ হাতত অক্সিজেন আছে। কেৱল এখন হস্পিটেলৰ এই অৱস্থা নহয়, আমি কালিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ফৰ্টিজৰ কি অৱস্থা হৈছে, এপ'লৰ কি অৱস্থা হৈছে, লাইফলাইনৰ কি অৱস্থা হৈছে। প্ৰতিখন হাস্পতালত আচলতে একেই অৱস্থা, অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে। বহুতে ক'ব খুজিছে যে এইবাৰ কোভিডে যিমান সংখ্যক লোকৰ প্ৰাণ লৈছে তাতকৈ বেছি প্ৰাণ লৈছে আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱে। জ্যোতিৰ্বিদ এইটো আটাইতকৈ চিন্তনীয় হৈছে দেশখনত, যে দেশখনত অক্সিজেন নাই, বিচনা নাই, ভেণ্টিলেটৰ নাই, তাৰ বাবেহে অধিকাংশ ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। জ্যোতিৰ্বিদ আমাৰ হাতত এটা ভিডিঅ' আছে, 2 দিন পুৰণা ভিডিঅ', যে হাস্পতালবিলাকত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা বিশেষ ভিডিঅ' আমি দেখুৱাম আপোনালোকক। এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়ে হাস্পতালখনৰ পৰা কিদৰে কথাটো কৈছিল আৰু এই কথাখিনি শুনিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে এইখন দেশত আচলতে প্ৰতিটো প্ৰান্তত কিদৰে অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈছে কোভিড ৰোগীসকলৰ বাবে। হয় এই মুহূৰ্তত আমি সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। আমাৰ লগত অক্সিজেন বাইট বুলি পৰি আছে, আমি সেইটো প্লে কৰি দিম আৰু এটা এক্সক্লুচিভ লগাই এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ। ऑक्सीजन मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ की ऑक्सीजन 3 घंटे की बची है और मैं इस मास्क को हटा के देखा कि इस मास्क को जैसे हटाता ऐसा लगता है जैसे कि किसी नए शरीर को आप स्विमिंग पूल के लिए ढकेल दे और वो सांस के लिए परेशान होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीजें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हैं, ऑक्सीजन रखते हैं। ये सब लोग जैसे मछलियाँ तैरते रखते मर जाती हैं पानी के बाहर, ये सब लोग मर जाएंगे। ये वक्त जो है सबको एक साथ आते हैं काम करने का लिए, एक दूसरे की टांग को नहीं खींचनी चाहिए। धन्यवाद। मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ की সেয়া আমি এটা মন্তব্য দেখুৱালোঁ। এই ব্যক্তিগৰাকী ICUত আছে, অক্সিজেনত আছে। তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে আচলতে এদিন পূৰ্বৰ দিল্লীৰ কি অৱস্থা। তেওঁ কৈছে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম আৰু সমগ্ৰ তথ্য জনাই যাম। ঋতুস্মিন তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁ অক্সিজেন মাস্কখন আঁতৰাই দিছিলে। যেতিয়া তেওঁ গম পাইছিলে যে অক্সিজেনৰ কমি হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছে উশাহ তেওঁ ভালদৰে ল'ব পৰা নাই। আজি হাৰিয়ানা চৰকাৰে অক্সিজেন আহিবলৈ দিয়া নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। হাৰিয়ানাত বৰ্ডাৰত গাড়ীসমূহ ৰখাই দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতি হ'ব লাগে নে অক্সিজেন দিল্লীয়ে পাব লাগে? হয় এই খবৰ কালিৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ যে হাৰিয়ানা চৰকাৰে আচলতে কি গুণ্ডাগিৰি দেখুৱাইছে। হাৰিয়ানাৰ মনোহৰলাল খাট্টাৰৰ বিজেপি চৰকাৰখনে কি কৰিছে, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ যিসমূহ দিল্লীলৈ যাব লাগে, দিল্লীত নিজস্ব অক্সিজেন উৎপাদন কৰিব পৰা তেনেকুৱা ডাঙৰ প্লান নাই। গতিকে তেওঁলোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা অক্সিজেন তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকলৈ অক্সিজেন পঠিওৱা হৈছে, কিন্তু সকলো টেংকাৰ বন্ধ কৰি দিছে। কালি এপ'লো স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ সংগীতা ৰেড্ডীও এইখিনি কথা টুইট কৰি কৈছে যে আমাক কিদৰে টেংকাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, হাৰিয়ানা চৰকাৰ হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে কিদৰে বন্ধ কৰি দিছে। ফলত এতিয়া দিল্লীত অক্সিজেনৰ ব্যাপক অভাৱ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়ে নিজস্ব বৰ্ণনা কৰিছে যে তেওঁ কিছু সময়ৰ বাবে মাস্কটো খুলি দিছিল, তাৰপিছত তেওঁ উশাহ ল'বলৈ কিমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এইজন ৰোগীয়ে তেওঁ কৈছে, নিজে ফেচবুক লাইভ কৰি কৈছে যে আমাৰ হাতত মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ অক্সিজেন আছে। গতিকে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে অসমতো আৰু 10 দিনৰ অক্সিজেন আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত কৈছে যে অক্সিজেন
বিছনা বা অন্যান্য সা সৰঞ্জামৰ অভাৱতে আচলতে কোভিড ৰোগীসকলৰ মৃত্যু হৈছে। কোভিডে যিমান সংখ্যক লোকৰ প্ৰাণ লৈছে তাতকৈ বেছি প্ৰাণ লৈছে আমাৰ ভাৰতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক অভাৱে জ্যোতিদ্বীপ। হয়, আমাৰ লগত আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এটা মন্তব্য আছিলে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ, যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেজৰিৱালৰ মাজত আলোচনা হৈছিলে তেওঁ এতিয়া লাইভ কৰিছিলে। এতিয়া দেশত বিতৰ্ক চলিছে ঋতুস্মিন যে লাইভ কৰাটো ঠিক আছিল নে নাই, এয়া কেজৰিৱালে আচলতে ঠিক কৰিলে নে নাই। কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আমি মন্তব্য দেখুৱাম য'ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বৰ্ণনা কৰিছে যে কি এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যদি অক্সিজেন নাপায় বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ব। প্ৰশ্নত উত্থাপিত হৈছে এই মুহূৰ্তত ব্লেম গেম হ'ব লাগে নে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব লাগে। জীৱন সকলোকে ওপৰত, ৰাজনীতি সদায় পিছত জীৱন সকলোকে ওপৰত। এই মুহূৰ্তত মানুহৰ জীৱন বচাব লাগে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সেই মন্তব্য আমাৰ মাজত আছে জ্যোতিদ্বীপ। হয়, সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বিহাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। দ্বিতীয়টো খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কেজৰিৱালৰ মন্তব্য মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত জনাম, কিন্তু দ্বিতীয়টো খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কোভিডত মৃত্যু হৈছে বিহাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবগৰাকীৰ। কোভিডে প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে ৰবি শংকৰ চৌধুৰীৰ। বিহাৰতো কোভিডে সংঘাৰ চলাইছে। কোভিডত বিহাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবগৰাকীৰে মৃত্যু হৈছে। কোভিডে প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে ৰবি শংকৰ চৌধুৰীৰ আৰু এই খবৰে বিহাৰৰ সকলোকে ভবাই তুলিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবগৰাকীকে যদি কোভিডে প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গৈছে, জ্যোতিদ্বীপ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ। হয়, চাওক কোভিড কিমান ভয়ংকৰ। এই মুহূৰ্তত এইগৰাকী আমি দেখুৱাই আছোঁ উচ্চপদস্থ এগৰাকী বিষয়া, তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব। কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে বিহাৰৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিডৰ ডাবল মিউটেণ্ট পোৱা গৈছে, ট্ৰিপল মিউটেণ্ট পোৱা গৈছে, UK ভেৰিয়েণ্ট পোৱা গৈছে আৰু এই মিউটেণ্টবিলাক RT-PCR টেষ্টতহে কেৱল ধৰা পৰে বুলি কৈছে, এণ্টিজেনত ধৰা নপৰে। গতিকে অতি দ্ৰুতগতিত কোভিড বিয়পিছে আৰু বহু লোকৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যু হৈছে। ঋতুস্মিন, এণ্টিজেন টেষ্টত ধৰা নপৰিব পাৰে, এটা ডাঙৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত দিছোঁ। আপুনি যদি ৰেড বা এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিছে আৰু তাত যদি নিগেটিভ আহিছে, তাৰ মানে আপুনি যে কোভিড নিগেটিভ সেয়া ন দি ক'ব নোৱাৰে। RT-PCR পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিছে RT-PCRটো যদি আপোনাৰ কোভিড ধৰা পৰা নাই তেন্তে CT স্কেন কৰাওক। আন এটা ডাঙৰ খবৰ, এইবাৰ কোভিডে ৰং সদায় সদায় শক্তিশালী হৈছে। RT-PCR টেষ্টতো ধৰা নপৰিব পাৰে, এণ্টিজেনতো ধৰা নপৰিব পাৰে, CT স্কেনতহে ধৰা পৰিব। সেয়া আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, মই ঋতুস্মিন আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। দিল্লীত এতিয়া যিসমূহ এই মুহূৰ্তত খবৰ আহি পৰিছে, দিল্লীৰ আমি কথা জনাই আছোঁ, অধিকাংশ হাস্পতালত অক্সিজেন পোৱা নাই। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, হাতজোৰ কৰি কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো অপশ্যনে নাথাকিব। আজি 25গৰাকী লোকৰ গংগাৰামত মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তত ISICত 160গৰাকীৰ অক্সিজেনৰ অভাৱত থাকিবলগীয়া হৈছে। এই পৰিৱেশটো দেশত কিয় হৈছে, এই প্ৰশ্নটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আছে। 1.5 বছৰ আগৰ পৰাই কোভিড হৈছে। কোভিডে কি সংঘাৰ চলাব পাৰে আমি দেখিলোঁ। এই 1.5 বছৰত আচলতে চৰকাৰখনে কি কৰিলে? সকলোৱে কৈ থকা হৈছিল, সকলোৱে ভৱিষ্যতবাণী দিছে, বিভিন্ন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত কোভিডৰ দ্বিতীয় ৱেভ আহিছে। এই 1.5 বছৰে কিয় চৰকাৰখনে স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত কিয় গুৰুত্ব নিদিলে? কিয় এই 1.5 বছৰ চৰকাৰখনে অক্সিজেন প্লাণ্ট বৃদ্ধি কৰাত কিয় গুৰুত্ব নিদিলে? কিয় এইখন চৰকাৰে মানুহৰ জীৱন বচাবলৈ আটাইতকৈ জৰুৰী বিষয়সমূহত কিয় গুৰুত্ব নিদিলে? সেই প্ৰশ্ন বাৰে প্ৰতি উত্থাপিত হ'ব। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰখন বিদেশতো ব্যাপকভাৱে সমালোচিত হৈছে। অক্সিজেনৰ অভাৱত যদি এইখন দেশত মানুহৰ মৃত্যু হয় তেন্তে এইখন দেশৰ উন্নতি কি পৰ্যায়ত আছে? আজি স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 75 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আমি হয়তো 75 বছৰ সেই খুব ধুমধামেৰে পাতিম, কিন্তু ভাৰতৰ কি হৈছে অৱস্থা? স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এই ফুপুলা স্বৰূপ কি হৈছে? আজি অতদিনে যদি আমি অক্সিজেন প্লাণ্টে ভালকৈ বঢ়াব নোৱাৰিলোঁ, যদি অক্সিজেনে এখন দেশে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে, সেইখন দেশে ডিজিটেল ভাৰতৰ কথা কৈ কি লাভ আছে? এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু এতিয়া দেশত বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰট'কল ভাঙি আচলতে সকলো কথা উদঙাই দিয়াটো যুক্তিসংগত আছিল নে নাই। এই মুহূৰ্তত মানুহৰ জীৱন বচাব লাগে, অক্সিজেন দিল্লীত যোগান ধৰিব লাগে, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মুখত কেজৰিৱালে কোৱা কথাখিনি তেওঁ জনতাৰ আগত অনাটো সঁচা আছিল, ঠিক আছিল নে নাই। আমাৰ লগত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সেই মন্তব্য আছে, য'ত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দিল্লীৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ, তেওঁ তাত উল্লেখ কৰি কৈছে যে তেওঁ যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে, মেডিকেলৰ পৰা SOS কল আহিছে আৰু দিল্লীত এতিয়া অক্সিজেন নাই। সেই মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।
एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे, अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं।
सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा।